عنوان ہے ہماری آج کی اس ادبی تقریب کا اردو کا نثری ادب 21ویں صدی میں، اردو پروز ان 21st سینچری۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے، آپ نے اپنا وقت نکال لیا، حالانکہ اس محفل کے ساتھ جتنے بھی ہمارے انوائٹڈ گیسٹس ہیں، ہمیں اس چیز کا بھرپور احساس ہے کہ سنڈے جو ہوتی ہے، اتوار جو ہوتی ہے، ہمیشہ اپنی فیملی کے لیے رکھتے ہیں، اور آج کی نامساعد حالات میں جبکہ کووڈ-19 کا ایک قہر مچا ہوا ہے اور ہر کوئی انسائیڈ ہی رہنا پسند کرتا ہے، آپ لوگ اس کے باوجود اس تقریب کو رونق بخشنے آئے ہیں، ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اور غالب مرحوم سے معذرت کے ساتھ تھوڑی تضمین کر کے ان کے شعر کی، آپ آئے محفل میں ہماری خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو کبھی اپنی محفل کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر اچھے کام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہو، تاکہ ہم وقت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ تو میں اس تقریب کی تلاوت کے لیے اپنے ہونہار نوجوان اسکالر جناب محمد یونس ٹھوکر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر تلاوت کلام پاک کا فریضہ انجام دے۔ یونس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حمد بے حد مر خدا را پاک را، آنکی مان داد مشت خاک را۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہم اپنے معزز سامعین کو بتاتے چلیں کہ اس تقریب کی 2 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست کا انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے اور یہ قریباً 1 بجے تک رہے گی، اور اس کے بعد 2 بجے سے لے کر 3:30 تک۔ اب یہ وقت پر منحصر ہے کہ کہاں سے کہاں چلتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہی چلے کہ اس کی 2 نشستیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات اس تقریب کی یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 کتابوں کی تقریبی رونمائی بھی انجام پذیر ہو رہی ہے، اور اس دور میں جبکہ تمام چیزیں برقی ہو رہی ہیں، ہو رہی ہے، ای میلز ہو رہے ہیں، ای بکس ہو رہی ہیں، یہ تمام صاحب کتاب جو لکھ رہے ہیں اور جو ابھی بھی لکھنے کی تگدو میں ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پہلے جو ہے ایک زبان سرکاری تھی، یعنی اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، اب چونکہ
यूनियन टेरिटरी के साथ ही इसमें 5 ज़बानें जो है वो अब शामिल हो गई हैं दफातर ज़बानों की। लेकिन आप लोगों को देखकर किताबों की इस तरह से जो है, जिस तरह से किताबें लिखी जा रही हैं, जिस तरह से अदबी महफिलें मुनक्कद हो रही हैं, मैं किसी भी तौर से नहीं समझता हूं कि हमारी उर्दू ज़बान को कोई खतरा लाहक है। कई ऐसी रियासतें भी हैं जहां उर्दू ज़बान कभी सरकारी ज़बान नहीं रही है, लेकिन वहां अदबी सरगर्मियां, वहां की एकेडमीज आप देख लेते हैं कि कहां से कहां पहुंच गई है। और मैं कतई ये नहीं समझता हूं, ये बात जो है, एक ही बात मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए उसके अफराद की जरूरत होती है। संस्कृत जो है जवाल पजीर हो गई, कितना वसी सरमाया, कितना जखीम सरमाया आज भी उसमें मौजूद है। लेकिन मामला यह रहा कि जब कोई जबान एक मखसूस तबके तक महदूद हो जाती है, एक ऐसे तबके तक महदूद हो जाती है जो सिर्फ उन्हीं के लिखी जा रही हो, तो जबान का जवाल आमादा होना, जबान का मर जाना लाजमी अमर हो जाता है। मैं समझता हूं कि जबान अपनी साख से बचती नहीं है, अपनी साख की बुनियाद पर जो है वो जिंदा नहीं रहती। जबान कौमों के या अफराद के इस्तेमाल से जिंदा रहती है। जब तक कि जबान के बोलने वाले मौजूद है, मुझे याद आ रहा है बुर्ज बानो कन्हैयालाल कपूर का वो इंशाया आपके जहन में भी होगा कि जहां पर उससे बार बार कहा जाता है कि आप यहां से चली जाओ, आप यहां की नहीं है। बुर्ज बानो असल में उर्दू की बात हो रही है वहां पर। जब उनसे यह कहा जाता है आप चली जाओ, लेकिन आइसक्रीम वाला या रेडी वाला जब जब पुकारता है तो वो समझती है कि नहीं, मेरे बोलने वाले यहां मौजूद है, मैं क्यों यहां से चली जाऊं। तो मतलब ये कि जब जबान के बोलने वाले मौजूद है तो किसी भी जबान को बाहर का या फॉरेन का कोई खतरा लाहक नहीं है। और इंशाअल्लाह अजीज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना भी हो सके उर्दू में बात करें, उर्दू में बोलें, उर्दू बोलने की तरवीज दें, किताबें इसी तरह से खरीद लें। हमारा मामला यह है कि हम साहब आपने किताब लिखी है तो उसका पीडीएफ मुझे जरा सेंड कर दें। को क्या करना था? वो जरूर आपको पीडीएफ ही नहीं बल्कि आपको किताब भी आपको तहफ़्फ़ुज़न दे देता है। लेकिन मेरा अकीदा है ये है कि आप किताब खरीद कर पढ़ें। जब आप किताब को खरीदते हैं, जब हम किताब को खरीदते हैं तो किताब को खरीदने के बाद इस मुसन्निफ या मुतरजम की हौसला अफजाई हो जाती है कि नहीं, कोई है, इस किताब का कोई कारी है जो जिसके लिए लिखी जा रही है। किताब खुद के लिए, किताब कारीन के लिए लिखी जाती है। और जब हम पीडीएफ या मुफ्त की जो है शराब मांगने पर आ जाएं, तब हम उसकी बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं बल्कि उसकी हौसला शिकनी हो जाती है। और मैं जरूर समझता हूं कि जितने भी यहां लोग हैं ये साहिब किताब ही हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी किताबें खरीद कर पढ़ें। आमतौर से आपने देखा होगा अब जो है अखबारात का सिलसिला भी जो है, अगरचे आए दिन अखबारात निकलते रहते हैं, लेकिन अखबार बीनी का जो शौक था हमारे, जब हम 9th में 10th में 5वीं में, तो एक मजमून हुआ करता था अखबार बीनी। आज भी आपको याद हो, लेकिन अब शायद वो अखबार बीनी का मजमून भी अब गायब है किताबों से। वहां लिखा हुआ होता था, गाड़ी में बैठते तो कहीं कोई कहता था साहब ये अखबार मुझे थमा दीजिए जरा, क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके पहले ही सफ़े के नीचे जो है हाशिए में लिखा होता था अखबार खरीद कर पढ़ने की आदत डालें। बहरहाल मैं अपनी जो है कलाम का यहाँ जो है सिलसिला मुनक़ता कर देता हूँ और इस तकरीब की मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले हम अपनी ईवान सदारत को तरतीब देते हैं। तो हमारे दरमियान कई बरगुज़ीदा शख्सियात बैठी है। आप सारे लोग बरगुज़ीदा है, आप सारे लोग जो है हमारे लिए मुक़द्दम है, हमारे लिए जो है एक सरमाया है। हमने आज दावत दी थी अपनी इस तकरीब को की रौनक बख्शने के लिए डॉक्टर असगर हसन सामून जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर हैं, लेकिन उनकी आमद जो है शायद मुतवक्का है और अभी जो है कह रहे थे कि आधे घंटे 1 घंटे में, चूंकि उनका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है तो जब तो आते हैं तब तक हम इसको। उसके बाद हमारी यहाँ पर हमारे दरमियान एक प्रोफेसर है, हमारी प्रोफेसर शफीका परवीन साहिबा, ये साबिका डायरेक्टर निज़ामत फासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी रही है। उनके कई किताबें भी मंजर-ए-आम पर हो चुकी हैं। एक मंजी हुई जो है एक शायरा भी है। और मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि मैंने
इनकी निगरानी में काम भी किया है। मैं उनको सादत जो है उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर शफीका परवीन साहिबा। जज़ाकल्लाह मैम। आज हमने इस तकरीब की रौनक को और अफजू करने के लिए शहर श्रीनगर के एक लीड कॉलेज अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर बशीर अहमद रास्तर साहब को भी मदऊ किया हुआ है। सुबह उनका फ़ोन आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी भी कल क्वालिफाई कर गई है नीट के लिए, तो कह रहे थे मेहमानों की आमद का सिलसिला, लेकिन फिर मैंने उनसे गुजारिश की है कि एक आधा घंटा तो आ जाएं, उनकी आमद भी इंशाल्लाह मुतवक्को है। हमारे दरमियान है एक नौजवान स्कॉलर भी हैं और आजकल डायरेक्टर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलासफी कश्मीर यूनिवर्सिटी में बस जो है वो वैसे तो डायरेक्टर तैनात हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और इकबाल शिनास भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनई साहब से इल्तिमास करता हूं कि वह ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह। वैशी सईद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जब आप अदबी कश्मीर की अदबी सरगर्मियों का जिक्र करते हैं तो वैशी साहब का नाम उसमें सर फहरिस्त है। हाल ही में उनकी एक अफसानवी मजमूए का 2 ज़बानों में तर्जमा भी हो चुका है, हाउ डैट अ डोव वुड बी, और सुगार क्यों था इस कश्मीरी में अंग्रेजी में बिलतरतीब उसका जो है तर्जमा भी हुआ है। जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं तो हम अपने अदब को आलमी अदब के जो है मयार पर देखते हैं। जब एक ज़बान का लिटरेचर कई ज़बानों में मुंतकिल हो जाता है तो बहुत कम फासला रह जाता है फिर उसको आलमी अदब के मयार पर परखने का। वैशी सईद साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए ईवान सदारत के लिए। जनाब वैशी सईद साहब, तालियों के साथ। आप चीफ एडिटर नगीना इंटरनेशनल भी हैं और जम्मू कश्मीर की फिक्शन गिल्ड के सरपरस्ती आला भी हैं। तशरीफ रखिए सर। हमारे दरमियान एक अदीब भी हैं, अफसाने निगार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डायरेक्टर न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अहदे पर तैनात हैं। मेरी मुराद है मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब से कि वो डाइस पर आकर ईवान सदारत में बैठे। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब। एक यकगुना तमानियत का एहसास होता है जब हम देखते हैं कि अर्स्टवाइल रियासत या आज की यूनियन टेरिटरी के इंतजामिया में कितने काबिल, होनहार, टैलेंटेड, डेडिकेटेड लोग रहे हैं। इंतजामी अमूरात की मसरूफियात के साथ साथ वो कितनी अदब की खिदमत करते हैं, ये अपनी जगह जो है सबसे बड़ी और अहम बात है। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं नज़ीर जावर साहब। ये फिक्शन निगार हैं और साबिक डायरेक्टर सिविल सप्लाईज कश्मीर भी रहे हैं। मैं नज़ीर जावर साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएं। आप सारे लोग ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी अदबी महफिल को रौनक बख्शी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपका इस्तकबाल किया जाए, आपका तारुफ कराया जाए सामीन के साथ। इसके लिए मैं एजुकेशनल शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर के कन्वीनियर जनाब गुलाम नबी कुमार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अदीब है, महक़िक़ हैं,
ان کی ایک دو کتابیں جو ہیں وہ چھپ کر سامنے بھی آ گئی ہیں اور بین الاقوامی اور قومی رسائل میں چھپتے رہتے ہیں. ایک بڑا نام بھی جو ہے یہ انشاءاللہ نوجوان ہیں اور بڑا نام بھی ہو رہا ہے ان کا. میں ان سے استدعا کرتا ہوں. اس دوران ہمارے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ہم ابھی جو ہے اپنے ڈاکٹر اصغر سامون صاحب کا انتظار کر رہے تھے تو ہم نے آدھا گھنٹہ کہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ جو ہے وقت پر ہوتے ہیں اور انہوں نے صرف 15 منٹ ہی لیے ہیں. ڈاکٹر اصغر حسن سامون صاحب کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. یہاں پر آپ کا انتظار ہو رہا تھا سر. ان کے لیے میں بتا دوں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یونین ٹیریٹری کی انتظامیہ میں ایک بڑا نام ہے اصغر حسن سامون صاحب کا. حال ہی میں ان کا تبادلہ محکمہ اسکولی تعلیم سے سکل ڈیولپمنٹ میں ہوا ہے. محکمہ سکل ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور اس سے پہلے اعلیٰ تعلیم میں بھی وہ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحقیق اور تخلیق کے لیے اعلیٰ تعلیم ہمیشہ کوشاں رہے ہیں. میں خود چونکہ اعلیٰ تعلیم کا ایک حصہ ہوں اور ان کی سربراہی میں کام بھی کیا ہے کالج میں. اردو کے لیے انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں جب یہ پرنسپل سیکرٹری کمشنر سیکرٹری کے عہدے پر تعینات تھے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تعلیم جو ہے یہ انسان کو جو ہے ترقی کراتی ہے اور اسی محکمے میں اعلیٰ تعلیم میں رہ کر ہی وہ پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پر تعینات ہوئے تھے. ان کی پروموشن ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے ایک اجرا کرایا تھا اعلیٰ تعلیم کا ایک مجلہ اردو کے لیے الف کے نام سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کا ایک شمارہ جو ہے منظر عام پر آ گیا جب آپ وہاں پر تھے. لیکن اس کے بعد جب ان کا تبادلہ ہوا تو شاید وہ بھی کسی سرد خانے میں پڑ گیا. لیکن ہماری بھی کوشش رہے گی کہ ہم اس کو سرد خانے سے نکال کر امید کریں گے کہ پھر سے ہمارے درمیان ہوں اس محکمے میں تاکہ پھر سے جو ہے ادب کا وہ جو ایک کارواں سا ایک سلسلہ سا چلا تھا وہ پھر سے انشاءاللہ بحال ہو. میں نے تخلیق اور تحقیق کے لیے ان سے اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے جو کالج فیکلٹی ہے کالج فیکلٹی کے تحقیقی مضامین اور تخلیقی نوعیت کے مضامین اس مجلے کے الف مجلے کی زینت بنے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے. میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. تھینک یو سر. ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ تکلامی معافی چاہتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے ان کا استقبال کرنا. میں غلام نبی کمار صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے مہمانوں کا باضابطہ استقبال کریں. غلام نبی کمار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوان صدارت میں تشریف فرما صدور حضرات، معزز مہمانان، سامعین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. پھر سے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج یعنی 18 اکتوبر 2020 کو یہاں ہوٹل شہنشاہ پیلس ڈل گیٹ سری نگر میں شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یک روزہ قومی سیمینار بعنوان اردو کا نثری ادب 21ویں صدی میں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، انعقاد کیا جا رہا ہے. ہم نے اردو ادب کی جن معتبر و معزز اور زندگی کے دیگر شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو یہاں دعوت دی ہے، وہ تقریباً سبھی تشریف لا چکے ہیں، تشریف آور ہو چکے ہیں. ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس بزم کو چار چاند لگائے، اس بزم میں چار چاند لگائے. ایوان صدارت میں
मुझे नज़र पड़ रही है सबसे पहले वैशी सईद साहब की जानिब। तो वैशी सईद साहब का हमें हमेशा ताउन रहता है, हर एतबार से ताउन करते हैं। वो अदीबों को सर आँखों पर बिठाते हैं और बहुत अच्छे फिक्शन निगार हैं, मुंतज़िम हैं, फिक्शन राइटर्स गिल्ड के सरपरस्त आला हैं, नगीना इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं। कई अफसानी मजमू इनके शाया हो चुके हैं और फिक्शन निगार हैं, अफसाना निगार हैं, मतलब नावल भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं, ड्रामे भी तहरीर करते हैं, खाके लिखे हैं। तो बहुत ही उम्दा इन पर तहक़ीक़ी मकाले भी लिखे जा चुके हैं। कई यूनिवर्सिटियों में इन पर तहक़ीक़ हुई है, जो मकाले बाद में शाया भी हो चुके हैं। हाल ही में इनकी तकरीब हुई जिसमें इनकी किताबों की रोनुमाई हुई। तो उसके बाद शफीका परवीन साहिबा, साबिक डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी, बहुत उम्दा लबुल लहजी की शायरा। इनका अंदाज़ बयां बहुत शगुफ्ता रहता है, बहुत उम्दा तकरीर करती हैं और ऐसी गुफ्तगू हमें यहाँ की ख़वातीन में बहुत ही कम देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इनकी बहुत उम्दा तकरीरें होती हैं, ऐसी तकरीर कि ज़िंदगी रूह में ताज़गी पैदा हो जाती है, रगों में जान पैदा होती है और इंसान सोचता है कि बस इनको सुनता ही रहे, बस सुनता रहे। तो इतना बेहतरीन तलफ़ुज़ है मैडम का। इनकी किताबें मेरी नज़रों से नहीं गुजरी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इन्होंने तनक़ीदी मज़ामिन भी लिखे हैं, पढ़े, बाज़ औक़ात पढ़े भी हैं मैंने, लेकिन किताबें नज़र से नहीं गुजरी हैं। लेकिन किताबों से ज़्यादा ये तकरीर बहुत अच्छी करती हैं। यकीनन जैसी तकरीर होगी उतनी ही अच्छी इनकी तहरीर भी होगी। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब रेडियो कश्मीर में न्यूज़ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, अदब का बहुत अच्छा शऊर रखते हैं, ख़ुद अदीब हैं, अफसाना निगार हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी हासिल हो चुका है। कश्मीरी ज़बान में इन्हें साहित्य अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा है गुज़िश्ता साल। आप बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, रेडियो कश्मीर में उर्दू अदीबों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें रेडियो में जगह फराहम करते हैं। तो हम इनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी में इकबाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इस वक्त वहाँ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। इकबालियात के मुदीर हैं, वहाँ से जो जरीदा शाया होता है। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, बहुत अच्छे अदीब। इनका ताउन भी हमेशा हमें रहता है, हम इनसे आइंदा भी ताउन की गुजारिश करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। आज के मेहमान ज़ी वक़ार जो अभी तशरीफ़ लाए हैं असगर सामुन साहब, इनसे बहुत सारी उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से बहुत सी बातें करनी हैं। उर्दू काउंसिल की बुनियाद इन्होंने डाली थी कश्मीर में, बाद में हुकूमत बदलती रही और मामला बिगड़ता रहा, लेकिन इनकी जो कोशिशें हैं वो काबिल सताइश हैं। हम इनके भी बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे हमेशा। और अदब शनास हैं, उर्दू अदीबों की बहुत रहनुमाई फरमाते हैं, हमेशा ताउन करते हैं, हर जगह रहते हैं, कभी इन्होंने हमें नाराज़ नहीं किया। उर्दू ज़बान अदब को इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उर्दू अदीबों को इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम जब भी इनके पास जाते हैं तो ये हमेशा अपना ताउन करते हैं, बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं, कदर अफजाई करते हैं। तो हाँ, उर्दू ज़बान अदब के हवाले से इन्हें कश्मीर में बहुत काम करना है, क्योंकि ये अदब शनास हैं। यही अभी हाल ही में महकमा तालीमात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे, स्किल डेवलपमेंट भी संभाल रहे हैं, एक साथ बैक वक्त दो शोबे संभाल रहे हैं। अभी हाल ही में इनका ट्रांसफ़र हुआ है, अब ये स्किल डेवलपमेंट का ओहदा संभाल रहे हैं फ़िलहाल। हो सकता है इन्हें बाद में कोई और भी शोबा संभालने के लिए दिया जाए। और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि उर्दू काउंसिल न सही, लेकिन जम्मू कश्मीर में कल्चरल एकेडमी है, लेकिन जहाँ एक छोटा सा इदारा शोबा है उर्दू का, जहाँ से शिराज़ा निकलता है, बस। इसके अलावा उर्दू जो कल्चरल एकेडमी है बाज़ औक़ात साल में 2 फंक्शन उर्दू के हवाले से करते हैं, लेकिन जिन तकरीबात का हिस्सा जिस कदर यहाँ तकरीबात या तादाद में होनी चाहिए, ज़्यादा तादाद में वो नहीं हो पा रही हैं।
अगर इनका ताउन रहा और कल्चरल एकेडमी जैसा बाज़ाब्ता अलग इदारा उर्दू का कायम किया जाए, जहाँ उर्दू के बेरोज़गार स्कॉलर अपॉइंट हो सके, उनको तैनात किया जा सके, उनको रोज़गार फराहम किया जा सके। ये सरकार में है इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हमें इनसे ही उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि अब उर्दू ज़बान बिगड़ने लगी है। 5 ज़बानें सरकारी ज़बानें करार दी गई हैं। उर्दू ज़बान यहाँ की चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, उर्दू राब्ते की ज़बान है। हर शख्स उर्दू ज़बान लिखना, पढ़ना, बोलना समझता है। और अब इनसे गुजारिश है कि ये आगे हम अदीबों की, यहाँ तालिब इल्मों की, यहाँ उर्दू में पढ़े लिखे बेरोज़गारों का सोचें और उनके लिए कोई लाहे अमल तैयार करें, मुरतब करें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा इनका। तो जब तक ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीदें हैं कि हमें हमेशा ताउन फरमाएंगे। डॉक्टर नज़ीर जौहर साहब सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अदब का शऊर रखते हैं, सलीका रखते हैं, अदीब हैं, फिक्शन निगार हैं, अफसाने लिखे हैं, नावल तहरीर किए हैं। 2 नावल इनके मंजर आम पर आ चुके हैं। इनके अफसाने मजमूए शाया हो चुके हैं। रेडियोई ड्रामे तहरीर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा भी कायम किया था उन्होंने, जिसके तहत ये इशाअत का काम भी करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं उस इदारे के तहत। तो खुदनविश आज इनकी एक किताब ज़िंदगी यूं तमाम होती है, उसका इजरा अमल में आना है। और आप भी इंशाअल्लाह उस तकरीब के शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सेशन में आप मुख्तसर बता दूं कि इस सेशन में इस सेमिनार के 2 सेशन होंगे। पहला सेशन जिसमें कुछ मकाला निगार हैं जो हाजिर नहीं हो सके हैं, लेकिन हम 2 मकाला निगार जो हैं इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, और कुछ किताबों पर तबसरे इस सेशन में पढ़े जाएंगे, क्योंकि तकरीब का अख्ताम 2-3 बजे तक हमें करना है। हालात के मद्देनज़र हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। और दूसरे सेशन में भी 2 मकाले और कुछ तबसरे पढ़े जाएंगे। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला इस तकरीब का इस तकरीब को तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पहले सेशन में ही किताबों की रस्म रोनमाई अमल में लाई जाएगी बदस्ते जो मेहमान ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा है। दूसरे सेशन में जो ऐवान सदारत सजाई जाएगी उसके मेहमानान भी हमारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। बाद में जो ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा असातिज़ा किराम हैं, वो मकाला निगारों और तबसरा निगारों और जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के हवाले से उर्दू ज़बान की क्या सूरत हाल है उस पर अपना इज़हार ख्याल फरमाएँगे। और ज़ाहिर है कि यहाँ पूरा मकाला पढ़ पाना मुश्किल है। मकाला जो यहाँ भी मकालात पढ़े जाएंगे वो बाद में किताबी सूरत में भी शाया होंगे। जो बैरून रियासतों से रिसर्च स्कॉलर ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ वबाई सूरत हाल की वजह से, वबाई बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उनके मकालात आप बाद में किताबी सूरत में पढ़ सकेंगे। जब किताबी सूरत में किताब शाया होगी तब आप उनके मकालात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जो मकाला निगार यहाँ पर मौजूद हैं उनका मकाला भी तवील है, लेकिन वो मकाला 10 मिनट के अंदर अंदर समेटने की कोशिश करें, उनसे गुजारिश है। और शेखुल आलम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से कुछ बातें बता दूँ कि इस सोसाइटी का क़याम 2018 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी। तो उस वक्त हमने एक यकरोज़ा कौमी सेमिनार इसी तरह का, लेकिन उस वक्त चूँकि सूरत हाल इस वक्त इस तरह की नहीं थी, बहुत अच्छी सूरत हाल थी। हालात भी उस वक्त ये खुशनसीबी थी हमारी कि हालात साजगार रहे थे, अच्छे रहे थे। तो आज हालात वैसे नहीं हैं। हमें तादाद बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उन लोगों का अपने साथ जोड़ना है जो अदब का जुनून रखते हैं, जैसे वैशी सईद साहब रखते हैं, या जो हाजरीन मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, जिनकी रगों में अदब का खून दौड़ रहा है, जो सच में खुलूस रखते हैं अदब के तईं, एक दूसरे के तईं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक दूसरे की इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, यहाँ पजीराई मिलनी चाहिए जो काम करता है। लेकिन यहाँ खाल ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हम उनको भी असर आंखों पर बिठाते हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। जो नहीं आए उनके लिए भी हमारा एहतराम दिल में रहेगा। हम उनको भी हमेशा याद करते रहेंगे, याद फरमाते रहेंगे। हमें ऐसी कोई बात नहीं, हमारा मकसद है जोड़ना उर्दू की, हमारी अपने लोगों के दिलों में, क़ारीन के दिलों में उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना, उनके रगों में उर्दू अदब को दौड़ाना, उर्दू ज़बान को दौड़ाना, ताकि
ऐसी हरारत पैदा करना ताकि वो उर्दू ज़बान जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर ज़िंदा रहे। और 2018 में इसी में हमने यहाँ एक सेमिनार मुनक़िद किया था 21वीं सदी में उर्दू अदब। आज 21वीं सदी में उर्दू का नस्र अदब मौजू है। इसी तरह आगे भी जब प्रोग्राम मुनक़िद होते रहेंगे उनका भी 21वीं सदी के हवाले से ही मौजू रहेगा, क्योंकि आज जो हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं, लिखने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, वक्त पर ज़रूरी है, ताकि जो उर्दू ज़बान पहले सूरत हाल अच्छी थी, आज वक्त वक्त गुज़रने के साथ साथ हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी सूरत हाल कहते कहते हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसमें आगे बढ़ना है और बहुत कोशिशें करनी है ताकि उर्दू ज़बान ज़िंदा रहें और हम इसके लिए कुछ कर सकें, खिदमत अंजाम दे सकें। हमने कश्मीर से बाहर भी जो लोग यहाँ से जो बाहर तशरीफ़ लाते हैं अदीब शुअरा, हमने उनके एज़ाज़ में भी दिल्ली में कई नशस्तें मुनक़िद की हैं। आसिम असदी साहब आए थे, हमने उनके एज़ाज़ में नशस्त मुनक़िद की। बशीर चिराग साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके एज़ाज़ में। राजा यूसुफ रियाज़ तौहीदी साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके एज़ाज़ में नशस्तें मुनक़िद की दिल्ली में। इसके अलावा आइंदा भी जो लोग दिल्ली में तशरीफ़ लाए हमसे रब्ता करें, हम जब तक हम हैं वहाँ पर, हम इनके एज़ाज़ में गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब अकेडमी, इतनी अकेडमियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी भी जगह मखसूस जगह पर इंशाअल्लाह ताला वहाँ के अदीबों और असातिज़ाए किराम के दरमियान उनकी बज़्म सजाएंगे, उनको एज़ाज़ देंगे ताकि उनका हौसला बढ़े और उनको लगे कि नहीं, हमारी उर्दू वालों की इज़्ज़त है, हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे दरमियान इतनी मुअज़्ज़ज़, बावक़ार और आली मर्तबत शख्सियतें मौजूद हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हमेशा रहेंगे। हम इनको आइंदा भी याद फरमाते रहेंगे। आप लोग हमें यूँ ही साथ देते रहें। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।